जब कोई पूछे क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, तो आप बोल दो अरे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारी सांस टूट जाएगी तो हमारी जोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। क्या बताएं तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर देंगे, अगर तुम्हारी सांस टूट जाएगी तो हम हमारी सांस जोड़ देंगे। जैसे सांस कोई फेविकॉल से जुड़ जाएगी और वो जोड़ देगा। बातें तो आदमी लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं होता है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग स्पेशल, आर यू हैप्पी, have you taken bath today? It is Shravan Maas going on. I think that all the people take bath early morning. Okay, how the things are going on in your life? सभी कुछ आपके जीवन में कैसा चल रहा है? तो क्या बोलेंगे? All the things are going on well. Okay, do you enjoy study? Yes sir. मैं सोचता हूँ एक बार आपको भी दिखा दूँ। Do you enjoy study? What time do you get up in the morning? I get up 6:30. What time did you get up today? I get up Today 7:15. you got up 7:15. Okay, I think you have to get up before 7:30 so that you may attend the class on time. Okay, इससे पहले तो उठना ही पड़ेगा आपको। चलो ठीक है। Do you like this class? Yes, I like this class. How many things do you learn in this class? I learn many things. There are many. How many things you learn? There are many topics. हाँ, Learn like tense, models, propositions. Okay. Narration. Tense, modals, narration, proposition, structure, conjunction. What is number of things? Number of things you learned in this class. Is this class beneficial for you? Yes, beneficial. Of course. Yes. Can anyone learn speaking English in this class? Yes. Are you able to speak English? Yes. What's the difference between your previous day and today? If you compare yourself with your previous day and today, so what's the difference? Ria, you tell me. Stand up and tell me what's the difference between previous day and today. Previous, I am very feared on this on stand, and I can't speak English, but this time after learning English I speak without fearly, and I have knowledge of tense, so I speak English. Very good. So what's your suggestion to the other students? I suggest to other student. Firstly, we are learning tense and propositions, so that's we learn. Okay. English. Your suggestions to all of you or all of them to join the class, to attend the class regularly and learn English. चलो ठीक है। I have taken your video so that you may see yourself after the class. Okay, it's very difficult and challenging when somebody take the camera before us suddenly, na, without any preparations. It's very challenging and difficult, but I think definitely, and we make mistake this way when we draw a camera before us suddenly, but after some time we become habitual. Sometime in the sense after 2-3 times, 10 times we become perfect, we become master to face the camera. Think about me, I am also speaking before you. Okay, are you observing any fear inside me? क्या आपको मेरे अंदर किसी प्रकार का डर लग रहा है? और मैं बिंदास वैसे ही पढ़ाता हूँ इसके सामने जैसे मैं आपको जनरली पढ़ाता हूँ। और यह है कि बीच में जब हम कैमरे में पढ़ाते हैं तो गैप नहीं हो पाता, क्योंकि अब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, हम छोड़ के नहीं जा पाते, और जनरली हम कुछ काम आ जाता है तो चले जाते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट बताया था आपको। प्रेजेंट में क्या पढ़ा था आपने? प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या थी? हमने बताया था हा, और पास्ट टेंस की पहचान क्या थी? था, और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होगी? गा। ठीक है, अब इसके अंदर 4 टेंस और होते हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम देखें सिंपल।
प्रेजेंट सिंपल वह जाता है, पास्ट सिंपल वह जाता था, और फ्यूचर सिंपल वह जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल में हम कुछ नहीं करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, और पास्ट सिंपल में क्या करते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, और फ्यूचर में क्या करेंगे हम, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इतना सा अभी हम डिटेल से यहाँ सब पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जनरली ये समझ है। अच्छा, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य जो होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि कल मैं जबलपुर में होऊंगा, तो ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर। तुम एक दिन बड़े आदमी होगे, ये कौन सा है, फ्यूचर। मतलब अभी से बाद का जो भी काम होने वाला है वो सब के सब फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमें पता है, लेकिन क्या हम कंफ्यूज होते रहते हैं। और ज़्यादा याद में कुछ भी करना नहीं है, बस बोलने की प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आता है। हिंदी में भी तो हम कितने टेंस प्रयोग करते हैं कि नहीं। अब मान लो मैं आपसे हिंदी में बात करूं, क्या तुम मंदिर जाते हो, प्रेजेंट। क्या तुम आज मंदिर गए थे, पास्ट। क्या तुम कल मंदिर जाओगे, फ्यूचर। जनरली बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि क्या तुम इसे पसंद करते हो, विजय को, प्रेजेंट। तो आप बताओगे नहीं सर मैं इसे पसंद करता था, अब नहीं करता, करता था पास्ट है, ठीक है। अब ये कहेगा मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। हम किसी को क्यों करें, है ना, क्योंकि आजकल सब चीज़ सौदेबाजी है, ठीक है। सौदेबाजी है कि नहीं। अगर मान लो किसी ने कहा आई लाइक यू, तो सामने वाला रिटर्न में कह दे आई लाइक यू टू, ठीक है, तब बात बनती, नहीं तो पता चलेगी लड़ाई चालू उधर से ही, ठीक है। तो मान लो कोई आपसे कहता है कि आई लाइक यू, तो बदले में आपको क्या बोलना चाहिए, बताओ क्या बोलना चाहिए। क्या, मान लो किसी ने बोल दिया आई लाइक यू, तो आप क्या बोलोगे बदले में। मान लो आप कहते हैं कि मैं भी पसंद करता हूँ, तो क्या बोलेंगे, क्या, आई लाइक यू टू। इसका मतलब होता है मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, और 15-20 लोगों को तो मैं करता ही करता हूँ, तुम्हें भी करता हूँ। अगर किसी ने बोला आई लव यू, ठीक है, तो हम जनरली क्या बोल देते हैं, आई लव यू टू। इसका मतलब मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, और 50 लोग और हैं इसके अलावा, लेकिन तुम भी उनमें से एक हो। इसलिए बोलना क्या चाहिए, आई टू लव यू या आई टू लाइक यू, ये बोलना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये तो बात की बात है, पहले पढ़ लें, इसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो जब कभी भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलूँगा, तो आई शैल स्पीक इंग्लिश। हम यहाँ पे करते हैं विल और शैल का प्रयोग। तो विल का प्रयोग कब करते हैं हम, विल का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट होते हैं यू, भी, नहीं यू, दे, ही, सी, ये होते हैं, और वी और आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, वी और आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोकन में अगर आप इनका प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। ज़रा विजय क्लोज द स्टोर, थोड़ा सा ऐसा लटका दो। जिम वालों को नशा चढ़ रहा है ज़्यादा गाने सुनने का, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अंग्रेजी बोलूँगा ही, हाँ यही मैं बताने वाला था कि जनरली हम विल शैल का प्रयोग करते हैं। तो विल का प्रयोग करते हैं यू, दे, ही, सी, इट, एस, एन, इन सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और शैल का प्रयोग करते हैं हम आई और, शैल का प्रयोग करते हैं हम आई और वी के साथ। लेकिन विल शैल के प्रयोग में एक अंतर है, विल शैल के प्रयोग में एक अंतर है। जब कभी भी अगर हम क्रिया पर बल देना हो तो इनका अर्थ आपस में बदल जाता है। जैसे जनरली आप कहोगे आई शैल गो, लेकिन अगर आपने कह दिया मैं जाऊंगा ही, तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, आई विल गो। इसलिए हम अगर आई विल गो बोल देते हैं तो भी ये गलत नहीं माना जाता, क्योंकि सामने वाला ये नहीं समझ पाता कि आप ये कह रहे हो मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगा ही। इसलिए हम दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं। हम शैल की जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर पैसे वॉइस या कुछ चेंज करने के लिए आया है और वहाँ पे शैल लगा है और आपके हिसाब से वहाँ शैल ही आना चाहिए, तो फिर वहाँ पे नहीं बदलना आप, ठीक है। वो फिर नियम वो जैसा लिखा है वैसा करना। तो बाकी जनरली आपके हाथ में है। तुम मरोगे, यू विल डाई, और तुम मरोगे ही, यू शैल डाई, है ना। यू के साथ शैल का प्रयोग कब करेंगे, जब
बात जिम्मेदारी के साथ कही जाएगी, गारंटी के साथ कही जाएगी तब, ठीक है। जैसे हम 6 सेंटेंस बनाते थे वैसे यहाँ भी, चूँकि हमने पहले ही पढ़ लिया तो ज़्यादा हमें दिक्कत है नहीं। जैसे वह गरीबों की मदद करेगा, ही विल हेल्प दी पुअर। अच्छा, वह गरीबों की मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प दी पुअर। क्या वह गरीबों की मदद करेगा, विल ही हेल्प दी पुअर। क्या वह गरीबों की मदद नहीं करेगा। दो प्रकार से कर सकते हो, वॉन्ट ही हेल्प दी पुअर या विल ही नॉट हेल्प दी पुअर, या तो वॉन्ट ही हेल्प दी पुअर या विल ही नॉट हेल्प दी पुअर। जब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल भी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, 2 नहीं है। मतलब नॉट जब है, विल के साथ नॉट हम साथ में नहीं लगाएंगे, या तो वॉन्ट करेंगे या फिर विल ही नॉट, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। चलो, वह गरीबों की मदद क्यों करेगा, वाई विल ही हेल्प दी पुअर। वह गरीबों की मदद क्यों नहीं करेगा, वाई वॉन्ट ही हेल्प द पुअर। ठीक, अंडरस्टैंड। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। मतलब जब हम ट्रांसलेशन सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर हमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी दोनों चीज़ें आनी चाहिए। यही हमारे सीखने का सिद्धांत है। देखो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम a man arrived in the village. Once upon a time a man arrived in the village. इसका मतलब क्या है, एक समय, once upon a time a man arrived in the village, एक गांव में एक आदमी आया। arrived मतलब क्या होता है, आया या पहुंचा, आ पहुंचा। रीच होता है जा पहुंचा, अराइव्ड होता है आ पहुंचा। जैसे स्टेशन पर ट्रेन आती है तो उसे क्या बोलते हैं, अराइव्ड, अराइविंग, आ रही है, अराइविंग, ठीक है। अराइवल आने का समय, और डिपार्चर जाने का समय, अराइवल। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अराइव मतलब होता है आ पहुंचना। तो एक आदमी गांव में आया। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, दैट ही विल परचेस ईच मंकी इन 10 रुपीज़। उसने घोषणा की कि वह प्रत्येक बंदर को 10 रुपये में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा वो बंदर, 10 रुपये में। Having heard this, villagers rushed toward nearest forest to catch monkey. Having heard, इसको सुनकर, villagers rushed, rushed मतलब क्या होता है, तेजी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना, तेजी से भागना क्या होता है, rushed, rushed toward, toward मतलब क्या होता है, toward, toward मतलब होता है की ओर, toward मतलब क्या होता है, की ओर। ऐसे ही वोकैबुलरी तैयार है। toward nearest forest मतलब नज़दीकी जंगल में गए, नियरेस्ट फॉरेस्ट। टू कैच मंकी, बंदर पकड़ने के लिए। एंड स्टार्टेड सेलिंग ऑल द कॉट मंकी इन 10 रुपीज़। और स्टार्टेड सेलिंग मतलब बेचना चालू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। कॉट मंकी, कॉट मतलब पकड़े हुए मंकी, चूँकि अब ये पास्ट का पकड़े हुए मंकी इन 10 रुपीज़, और 10 रुपये में पकड़े हुए मंकी बेचना चालू कर देते हैं। After some days this process became slow. कुछ दिनों बाद this process became slow मतलब यह प्रक्रिया धीमी हो गई। People lost their interest from this scheme. People lost their interest from their scheme. इसका मतलब लोगों का इस स्कीम से, इस योजना से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उनकी रुचि ख़त्म हो गई। 10 रुपये में रुचि ख़त्म हो गई उनकी। देन द पर्सन सेड नाउ ही विल परचेस मंकी इन 20 रुपीज़। फिर दिस पर्सन सेड नाउ ही विल बाय मंकी या परचेस मंकी इन 20 रुपीज़। अब उसने कहा कि वह बंदर कितने रुपए में खरीदेगा, 20 रुपये में खरीदेगा वो बंदर। पीपल अगेन स्टार्टेड टू कैच मंकी। लोग फिर से बंदर पकड़ने लगे। ऐसा ही होता है ना, लालच। शुरू में लोगों का जी भर जाता है, क्या 10 रुपये में मज़ा नहीं आ रहा, फिर उसने कहा 20 में खरीदेंगे। अच्छा, दोनों डिपेंड करता है कोई भी इंटरेस्ट, उपलब्धता और मांग, है ना। उपलब्धता कितनी और मांग कितनी। शुरू में बंदर इजीली पकड़ा गए तो उन्होंने 10 में बेच दिया, फिर बंदर कम पड़ गए तो उसने 20 कर दिया। जैसे टमाटर भी 200 रुपये किलो हो गए। कारण क्या है
कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो सारे टमाटर खरीद के और रख लेते हैं और वो देते नहीं हैं मार्केट में। फिर मार्केट में हाहाकार हो जाती, लाओ लाओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टॉक निकालते हैं। जैसे मार्केट को आवश्यकता है 10 कुंटल की, वो निकालेंगे 5 कुंटल उदाहरण के तौर पे। तो इधर मार्केट में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और सप्लाई वहाँ से डाउन कर देते हैं। और चूंकि व्यापारियों को पता है कि इस समय किसानों के पास टमाटर होगा नहीं, या तो कोल्ड स्टोरेज में हो सकता है या पाली हाउस में हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि उनने 10 रुपये में जो टमाटर खरीद कर रखा था वो टमाटर आज की स्थिति में मान लो 100 रुपये से ऊपर पार हो गया, तब वो निकालना चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे देते हैं वो। तो सीधा सीधा 10 गुना 15 गुना 20 गुना प्रॉफिट। अगर 10 रुपये का टमाटर 200 रुपये में बिक जाए तो सीधा सीधा देखो कितना 20 गुना प्रॉफिट ले रहे हैं वो लोग, है ना। ये रहता है, तो यही है तरीका। तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं करते, ये सारी चीज़ें जाम कर देते हैं। वो चाहें तो ऑयल भी जाम कर देते हैं, दाल भी जाम कर देते हैं, शक्कर भी जाम कर देते हैं व्यापारी। कुछ लोग मिल के और यूनियन बना के बोलते हैं चलो मार्केट में दो ही मत, रख दो, गोडाउनों में भर दो पूरा। तो इस वजह से महंगाई बढ़ती। एक बता दिया आपको, पता चले। आप सोचते हो कि शायद सप्लाई मार्केट में यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि चेन रहती है। सबसे पहले जब सस्ता रहता है टमाटर तो ले लेके वो उसमें भर लेते हैं, ठीक है, अपने कोल्ड स्टोरेज में। और जब फिर यहाँ जब किसानों के पास नहीं रहता तो वही रिटर्न वापस आता है। यही सब चलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। यस, कोल्ड स्टोरेज का मतलब उसमें सारी चीज़ का कांस्टेंट टेम्परेचर है, 1 साल तक रख सकते हो, 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। एप्पल कितने दिन पहले का आया है और तुम अभी खा रहे हैं, केले कब रख देते हैं, सब चीज़ों के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर है। प्याज, ठीक है ना, या मान लीजिए टोमेटो, पोटैटो, जो भी चीज़ें हैं जिनको रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, जैसे पालक नहीं रखते कि पालक ही रख दी कोल्ड स्टोरेज में, इस चीज़ नहीं रखते। मतलब ऐसी टमाटर है जो महंगी चीज़ें हो जाती हैं, प्याज, इनको रखते हैं। अगला है बट आफ्टर सम टाइम, परंतु आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, दिस प्रोसेस अगेन बिकेम स्लो, यह प्रक्रिया फिर से धीमी हो गई, फिर से धीमी होगी। नाउ ही सेड, अब उसने कहा, ही विल परचेस मंकी इन 50 रुपीज़, वह बंदर 50 रुपये में खरीदेगा। बट ही विल गो टू सिटी फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी रीज़न, परंतु वह किसी कारण से वो शहर जाएगा। इसमें विल आ गया, ही विल गो टू सिटी फॉर एनी रीज़न। सो हिज असिस्टेंट वॉज अपॉइंटेड, तो उसका जो असिस्टेंट था, उसका सहायक था, वो अपॉइंट कर दिया गया, अपॉइंटेड। लिसनिंग दिस, यह सुनकर, विलेजर शॉक्ड बिकॉज दे हैड कॉट ऑल द मंकी ऑलरेडी, अब यह सुनकर गांव वाले शॉक्ड हो गए, चकित हो गए कि अरे यार ये साला इतना महंगा बंदर खरीदेगा। अब ये कह रहा है कि 50 रुपये में बंदर खरीदेगा, ठीक है, और ये इसके जो है बॉस भी, और सारे बंदर हमने पहले ही पकड़ लिए, अब कहाँ से लाएं बंदर, हमने 10 में ही बेच दी, अब बेचना था। दैट्स वाई, फिर वो कह रहा है, दैट्स वाई नो एनी मंकी वॉज फाउंड, इसलिए कोई बंदर नहीं मिला। देन असिस्टेंट अप्रोच टू द विलेजर्स एंड सेड, अब जो असिस्टेंट है, सहायक है उसका, वो गांव वालों के पास गया। अप्रोच का मतलब होता है किसी उद्देश्य से पहुंचना, ठीक है। रीच होता है पहुंचना, और अप्रोच क्या होता है, किसी उद्देश्य के साथ पहुंचना। अप्रोच, जैसे आप कहते हैं ना मेरी वहाँ तक अप्रोच है, ठीक है, अप्रोच, ठीक है, मैं इसे अप्रोच कर लूँगा, मतलब किसी उद्देश्य से किसी चीज़ को हासिल कर लेना, तो वो किसी उद्देश्य से उनके पास पहुँचा। अप्रोच का ये मतलब होता है, अप्रोच्ड टू द विलेजर्स। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें, सो आई कैन गिव यू मंकी फ्रॉम द केज इन 35 रुपीज़, अगर आप चाहें। अब असिस्टेंट यहाँ पे धोखा कर रहा है, और वो क्या कह रहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बंदर 35 रुपये में दे सकता हूँ, ठीक है। असिस्टेंट को वो छोड़ गया कि भाई तू देख, मैं आ रहा हूँ। When my boss will return, then you shall these monkey in 50 rupees, और जब मेरे बॉस आ जाएंगे तो तुम इनको उसे 50 रुपये में बेच देना। यहाँ असिस्टेंट कह रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब वो पकड़ नहीं रहे, यहाँ पे बेईमानी चालू हो रही है, और बेईमानी कौन कर रहा है, असिस्टेंट भी कर रहा है और गांव वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि उसी से लेकर उसी को बेचेंगे। यहाँ पे वो गद्दारी कर रहा है। अब देखो होता क्या है, जब गद्दारी होती है, जब करते हैं तो क्या होता है, विलेजर्स एग्रीड, गाँव वाले सहमत हो गए। विद द प्रपोजल, प्रपोजल मतलब क्या होता है भाई, प्रस्ताव, हाँ, विद द प्रपोजल, इस प्रस्ताव से गांव वाले सहमत हो गए। एंड दे बॉट ऑल द मंकीज़, और उन्होंने सारे बंदर
खरीद लिए। दे बॉट ऑल द मंकीज। नेक्स्ट डे देयर वॉज नाइदर एनी बॉस नॉर असिस्टेंट। अगले दिन ना तो कोई बंदर था और ना ही कोई असिस्टेंट था। ओनली मंकीज वर देयर। वहाँ पे क्या थे? बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। लो भैया, वो उसने धोखा दिया कि वो सोच रहा था, दरअसल वो जो असिस्टेंट है और उसका बॉस है वो दोनों चालबाज थे। वो ग्रामवासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए थे। तो ऐसी स्कीमें बहुत आती हैं गांव में। कभी बताते हैं कि चलो CFL बल्ब ठीक कर देंगे हम, आपका अंगूठा लगा दो, नया CFL दे देंगे, लेकिन अंगूठा लगाने में आपके खाते के पैसे ट्रांसफ़र हो जाए। अभी गांव में ऐसा हुआ है कि लोग आए कि आपका पुराना CFL दे दो, हम नया दे देंगे। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड ले आओ, अंगूठा लगा दो। लोगों ने अंगूठा लगा, OTP आया होगा देखो कुछ भी, और पता चला उनके खाते के पैसे उनके खाते में चले गए। तो ऐसा गांव में बहुत किया फ्रॉड। तो गांव में ऐसी बहुत कंपनियां आती हैं, कुछ भी पैसे वैसे लेते रहते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अब जो जगह है यहाँ पे खाली, इसमें आपको इसको लिखना है हिंदी में, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब एक प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है, हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश से हिंदी करते हैं, तो हिंदी से इंग्लिश भी हमें आना चाहिए। अब देखो कुछ हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। इसमें लिखा ही है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक यू माइन। मैं तुम्हें अपना बना लूँगा तो क्या हो जाएगा? आई विल मेक यू माइन। अगर कोई ये पूछ ले आई विल मेक यू माइन, तो भी आप इसकी हिंदी बता देंगे, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। कोई किसी को अपना नहीं बना सकता, है ना? बना सकता है कोई किसी को, आदमी तो खुद का ही रहता है ना? कोई किसी को अपना कैसे बना लेगा? कोई नौकर थोड़ी बना लेगा आदमी को, है ना? अच्छा, इंग्लिश में पूछ रहा हूँ। यू विल गेट द ट्रुथ। यू विल गेट द ट्रुथ, इसका मतलब क्या होगा? अंदाज़ा लगाओ, बताओ क्या होगा। तुम्हें देख लिया तो बता ही दो उसी में से। यू विल गेट द ट्रुथ, हाँ, यू विल गेट द ट्रुथ मतलब तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी, तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर सही बनाए तो तुम्हें सच्चाई, गेट मतलब प्राप्त होना होता है वैसे, यू विल गेट द ट्रुथ। पर गेट का जो प्रयोग है बड़ा मल्टीपर्पज़ है। गेट का प्रयोग बहुत जगह होता है, फ्रेजल वर्ब में होता है, हर जगह होता है गेट का प्रयोग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आर यू गेटिंग, इसका मतलब है क्या आपको समझ में आ रहा है? जबकि गेटिंग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। गेट अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, ठीक है। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, ठीक है। गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, ठीक है। होता है कि नहीं? ठीक है। और जल्दी अगर हम बोले गेट बैक सून, जल्दी आना। और गेट का प्रयोग वहाँ भी करते हैं जब कोई काम करवाना हो, जैसे गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। गेट योर आइज चेक्ड, गेट योर शूज़ पॉलिश्ड, अपने जूते पॉलिश करवा लो, ठीक है। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, गेट योर हाउस क्लीन्ड, ठीक है। गेट योर डॉक्यूमेंट जेरॉक्स्ड, फोटो कॉपी करा लो, ठीक है। तो गेट का प्रयोग समझ में आ रहा है? गेट बहुत मल्टीपल यूज़ है इसका। गेट इन, कहीं प्रवेश करना। गेट ऑफ, कहीं से निकलना। बहुत सारे प्रयोग हैं इसके, ठीक है। अगला है आई विल नेवर फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। इसका मतलब, हाँ, आई विल नेवर फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। ऐसा आपको आना चाहिए बोलना और बोलते रहना चाहिए कि आई विल नेवर फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। क्या रहता है, कभी भी चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, बस चीज़ों को पढ़ो नॉलेज बढ़ाने के लिए, बस नॉलेज बढ़ाओ और वही नॉलेज आपको काम आता है। रटी हुई चीज़ें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ना जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या आ जाए, और ज़रूरी नहीं है कि जो तुम पढ़ो एज इट इज़ वही एग्ज़ाम में आए। तोड़ मरोड़ के वही चीज़ पूछी जा सकती है। अगर आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप उत्तर पे पहुंच सकते हो। तो बस कभी भी है बिना टेंशन के ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ो कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हम एक नई चीज़ पता चल गई, बस इसमें ही खुश हो जाओ। ये मत सोचो कभी याद भी रहना होगा तो रह जाएगा। लोग कहते हैं हमारी मेमोरी ख़राब, हम भूल जाते हैं। सोचो अगर दुनिया ऐसे लोगों को बीमार कहते हैं जो अपनी बातें नहीं भूल पाते हैं। आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने 2 साल के थे तब तक की उन्हें बातें अभी भी याद हैं। वो लोग बड़े दुखी रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन्हें मानसिक तनाव रहता है। तो हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों को डिलीट कर देता है, लेकिन हम दरअसल करते ये हैं कि जो हमारी स्वीट मेमोरीज़ होती हैं उन्हें तो हम संजो के रख लें, मतलब उन्हें तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी कड़वी मेमोरी रहती है उन्हें हम याद रखते हैं, है ना।
स्वीट मेमोरीज़ की फ़ोटो खींच लेते हैं और कड़वी मेमोरीज़ को याद रखते हैं, फ़ोटो नहीं खींचते, वो तो याद ही रखना पड़ता है उनको। ये गलत बात है। चलो, आई विल अनवेल यू। अनवेल, VEIL, वेल मतलब होता है पर्दा, बेपर्दा। आई विल अनवेल यू, इसका मतलब मैं तुम्हें बेनकाब करूँगा। आई विल अनवेल यू, बेनकाब आदमी की वास्तविकता उजागर कर देना। आप कह रहे हैं कि मैं आपकी वास्तविकता उजागर कर दूंगा। हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट। हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट, मुझे कब तक इंतज़ार करना होगा, करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखो सब में विल दिया है, बिना विल के कोई भी सेंटेंस नहीं है, फ्यूचर के सेंटेंसेस आ रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट, मुझे कब तक। विल यू डेजर्ट मी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। विल यू डेजर्ट मी, डेजर्ट मतलब छोड़ना होता है, छोड़ देंगे, ठीक है। विल यू डेजर्ट मी, क्या बोलोगे, यस आई विल कि नो आई विल नॉट। वैसे तो नो बोलना पड़ेगा, जब कोई पूछे क्या तुम मुझे छोड़ दोगे तो आप बोल दो अरे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारी सांस टूट जाएगी तो हमारी जोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे तो करते हैं, क्या बताएं तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर देंगे, अगर तुम्हारी सांस टूट जाएगी तो हम हमारी सांस जोड़ देंगे। जैसे सांस कोई फेविकॉल से जुड़ जाएगी और वो जोड़ देगा। बातें तो आदमी लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं होता है। चलो ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। जैसे कि तेरा क्या होगा कालिया। What will happen? What will happen to you कालिया। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। What will happen to you कालिया, तेरा क्या होगा कालिया, तो क्या हो जाएगा What will happen। ये लिखने में दिक्कत है, इसमें चलो रहने देते हैं। What will happen to you कालिया, वेरी सिंपल। अगला है, कमीने मैं तेरा गला दबा दूंगी। तो कमीने को क्या बोलते हैं, कमीने को क्या बोलोगे भाई, रास्कल। क्या बोलोगे, रास्कल, RASCL, रास्कल। आई विल चोक यू आउट। चोक आउट होता है गला दबा देना, CHOCK चोक, OUT आउट। तो क्या होगा, रास्कल आई विल चोक यू आउट, है ना। यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत है, चोक आउट। चोक आउट, ठीक। अगला है, यू विल लव टू बी हेयर। इसका मतलब क्या होगा, यू विल लव टू बी हेयर, इसका मतलब क्या होगा, यू विल लव टू बी हेयर। तो इसका मतलब है तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगेगा, या तुम्हें यहाँ होकर अच्छा लगेगा, या तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। समझ में आया, यू विल लव टू बी हेयर, यहाँ होकर तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे आप किसी को बुला रहे, मान लो आपकी छुट्टी हो गई, आप अपनी बुआ की लड़की को बुला रहे हैं आपके पास रहने के लिए, आपके गांव में छुट्टी बिताने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, यू विल लव टू बी हेयर। वो कह रही यार मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता, आप कह रहे हो नहीं नहीं अच्छा लगेगा आओ, तो यू विल लव टू बी हेयर, है ना। डोंट नो व्हेन विल ही रिटर्न। डोंट नो व्हेन विल ही रिटर्न, पता नहीं वह कब लौटेगा। डोंट नो व्हेन विल ही रिटर्न, पता नहीं वह कब लौटेगा, ठीक है। कई बार कोई जाता है कि हम जल्दी आ जाएंगे और वो व्यक्ति बहुत देर में आता है या आता नहीं बहुत देर तक, तो आप कहते हैं पता नहीं, डोंट नो व्हेन विल ही रिटर्न। मैं तुमको आश्चर्यचकित कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल। बड़ा सिंपल है ये तो यार, आई विल सरप्राइज, आई विल सरप्राइज यू। ये तो आप बोलते ही रहते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप सरप्राइज देते हैं, आई विल सरप्राइज यू, बड़ा सिंपल है। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, पहले हो चुका, बताओ फिर भी। हाँ, आई विल नेवर फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन, ठीक है। यू विल डेफिनेटली रिपेंट ऑन दिस मिस्टेक, यू विल डेफिनेटली रिपेंट ऑन दिस मिस्टेक, क्या हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली रिपेंट ऑन दिस मिस्टेक।
तुम ज़रूर इस गलती पर पछताओगे, तुम ज़रूर इस गलती पर पछताओगे। आगे क्या हो जाएगा? वी विल शेयर पेन एंड प्लेजर। क्या हो जाएगा? वी विल शेयर पेन एंड प्लेजर, हम सुख दुख बांट लेंगे। वी विल शेयर पेन एंड, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ठीक है। क्या होता है कि मिलने से खुशी मल्टीप्लाई हो जाती है और दुख डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अगर दुखी हो, अगर आप उससे मिलो, उसके पास जाओ, उससे बात करो, तो उसका दुख जो है वो डिवाइड हो जाता है, और अगर खुशी के पल उसमें चलेगा तो उसकी खुशी मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि हम संसार में, बस दुनिया में यही तो है, सब लोगों का लोगों के प्रति तो है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आप दुनिया की कितनी आधुनिक सुख सुविधाएं ले लो, अगर लोगों का मान सम्मान नहीं है, इसलिए हमें लोगों की जो समाज की जो विचारधारा है उसके साथ चलना पड़ता है। भले ही आप विपरीत विचारधारा रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समाज में जो बहुसंख्यक लोग हैं, या बहुसंख्यक इंदा कहें मेजॉरिटी का, आपको फेवर करना ही पड़ता है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक, अब कुछ सेंटेंस लिखो आप।